Very good afternoon, students. Now it's our ninth lecture on complex number, and now we comes with the last topic of this unit, that is a logarithm of complex number. Now, how to get the logarithm of any complex number? So here is, if we consider that z equals to x plus iy is a complex number, so we write in the form of polar, that is r into cos theta plus I sin theta. You know very well how we get the polar form of that complex number. Then that polar form can be write in generalized form. Okay, so how we write that? Z is equals to r into cos of theta is replaced by 2n pi plus theta. हमने ये जो फॉर्म देखा था जनरलाइज फॉर्म, दैट वी हैव सीन इन रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो यहाँ पे भी वही कंसिडर करना है, दैट इज r एज इट इज, दैट थीटा इज रिप्लेस्ड बाय cos of 2n pi plus theta plus I into sin of 2n pi plus theta. What about that r is called as amplitude of z, that is under root of real part square plus imaginary part square, and theta is that is called as a, इसे क्या कहा जाता है, magnitude of z, and that is called as a amplitude of z, that theta that is equals to tan inverse of imaginary part upon real part, that is y by x. अब उसके बाद we write that term. ये टर्म कौन से फॉर्म में है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे टर्म को कन्वर्ट करते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया था कि cos थीटा प्लस I sin थीटा ऐसे फॉर्म में अगर आपकी टर्म है, so it can be written as e raised to the power I theta, that is called as a exponential form of that term. Cos theta plus I sin theta equals to e raised to I theta. Theta is the angle of that cos and sin. अब सिमिलरली इसके साथ भी अगर इसकी कंपैरिजन करूंगी तो थीटा की जगह यहाँ पे 2n पाई प्लस थीटा और यहाँ पे भी 2n पाई प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा, दैट होल टर्म इज रिप्लेस्ड बाय e रेज़ टू द पावर I 2n पाई प्लस थीटा, r रहेगा एज इट इज. अब उसके बाद क्या करेंगे हम, वी टेक अ लॉग ऑन बोथ साइड. वी टेक अ लॉग ऑन बोथ साइड, तो दैट गिव्स, हियर इज, रिमेंबर दैट देयर इज अ कैपिटल L, सो कैपिटल L log z equals to, here is also the capital L, log of r into e raised to I 2n पाई प्लस थीटा. अब अगर इस टर्म को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये कौन से फॉर्म में है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ log of a into b. इट इज इन द फॉर्म ऑफ log of a into b. तो हमें पता है कि एक्सपेंशन क्या होता है इसका, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, दैट इज log a plus log b. वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ log a plus log b. और अब अगर ये टर्म देखोगे आप, r into e raised to I 2n pi plus theta, that is also in the form of a into b. a की जगह r है और b की जगह that exponential term है. So we apply that result here. So that gives log of z equals to, here is a log of r plus, यहाँ पे क्या होगा, log of e raised to the power I 2n pi plus theta. Okay. Now that e raised to the power, that term comes in a multiple of that log, so that log of z is equals to, we write log of r, यहाँ पे ये स्मॉल रहता है, दैट इज log of that term, so that is log r plus log of e raised to I 2n pi plus theta. It comes in a multiple of that log, that is 2n pi plus theta, and that I also comes here, I into that, and here is remaining log e. अब सबको पता है कि log e की वैल्यू क्या होती है, log e is equals to 1, तो remaining only that term, so we write log of z equals to log of r plus I into 2n pi plus theta. Okay, so in this way we get the log of complex number, but that value that has a particular name which is called as, इसे कहा जाता है, इस ये प्रॉब्लम है, ये बाद में देखेंगे, which is called as जनरल वैल्यू. उसे क्या कहा जाता है, जनरल वैल्यू. कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अगर ऐसे फॉर्म में आपकी टर्म रही कैपिटल लॉग ऑफ जेड, ऐसे फॉर्म में नोट करना ये कि क्या नोट करना है आप लोगों को, कि अगर लॉग जो है उस लॉग में जो आपका यल रहेगा, दैट शुड बी अ कैपिटल, यल शुड बी कैपिटल, एल शुड बी कैपिटल, देन वी से दैट इट इज अ जनरल वैल्यू. ओके, अब अगर हमें प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है तो क्या करना पड़ेगा हमें, व्हाट वी हैव टू डू, वी गिव इट इक्वेशन नंबर 1 एंड नाउ वी पुट, यहाँ पे हम पुट करेंगे, पुट
n इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। अब अगर इक्वेशन 1 में आप n इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो n 0 होने के बाद सिंपली यहाँ पे रहेगा i इंटू थीटा, वो पर्टिकुलर वैल्यू हो जाएंगी, दैट इज अ जनरल वैल्यू। जनरल वैल्यू हम इसलिए कहते हैं कि ये जो n रहता है दैट n इज वेरीज फ्रॉम 0 to 1 2 3 एंड सो ऑन, ये n बढ़ते जाता है, सो वी गेट द मेनी वैल्यूज ऑफ दैट log r plus I into 2n pi plus theta. So that is a generalized form and that we called it as a general form of logarithm of complex number. But अगर n को हम 0 कर देंगे यहाँ पे तो वो particular form हो जाएगा. So in this case we write log, that log is here. Remember that here is the small and log z is equals to, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका log r plus I as it is रहेगा. अब जब n 0 करेंगे तो that term 0 एंड सिंपली यहाँ पे रहेगा आई थीटा। तो ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई प्रिंसिपल वैल्यू विच इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल वैल्यू। अब ध्यान में रखना हमेशा कि अगर प्रॉब्लम में आपको पूछा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द लॉगरिथम ऑफ दैट टर्म और फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ द लॉगरिथम ऑफ दैट टर्म, तो प्रिंसिपल वैल्यू रहेंगी तो ऐसे फॉर्म में आएंगी log r प्लस आई थीटा, r इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट z एंड थीटा इज द एम्पलीट्यूड ऑफ z। यहाँ पे अगर आप जनरलाइज वैल्यू कंसीडर करेंगे तो दैट इज log ऑफ r, दैट इज log ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ z प्लस i इंटू 2n पाई प्लस दैट थीटा। यहाँ पे 2n पाई की टर्म एडिशन में रहेंगी थीटा के। सो रिमेंबर दैट थिंग, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बोथ, दैट इज अ log कैपिटल L रहा, इट इज अ जनरल, लॉग में स्मॉल l रहा, देन इट इज अ प्रिंसिपल। सो दैट इज ऑल अबाउट द लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखेंगे हम इस पर बेस प्रॉब्लम्स। सो हियर आई हैव रिटन टू प्रॉब्लम्स, फाइंड अ कैपिटल लॉग ऑफ -5 एंड फाइंड अ स्मॉल लॉग ऑफ 1 प्लस आई। अब आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा, ये कैपिटल लॉग यहाँ पे डिफाइन करता है इसकी जनरल वैल्यू, और ये स्मॉल लॉग में जो यल की वैल्यू है स्मॉल यल, सो दैट डिफाइन द प्रिंसिपल वैल्यू। तो हम सबसे पहले log ऑफ -5 निकालेंगे। अब log ऑफ -5 निकालने के लिए हम पहले तो सबसे पहले कंसिडर करेंगे -5, क्योंकि जब भी हम log किसी टर्म का log निकालते हैं, यहाँ पे अगर हम log z निकाल रहे हैं, z हमारा क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमें क्या निकालना पड़ता है, वी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर एज वेल एज एम्पलीट्यूड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये दोनों बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है व्हेन वी फाइंड द लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लगे तो इसको नोट कर लेना। क्या नोट करना है आपको, टू फाइंड लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइंड क्या क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड मैग्नीट्यूड, मतलब फाइंड आर एंड थीटा, यू हैव टू फाइंड द आर एंड थीटा। तो अब इसकी तो हमें इस वैल्यू की -5 का हमें आर और थीटा निकालना पड़ेगा। अब -5 का आर और थीटा निकालना है, दैट मीन्स यू हैव टू एक्सप्रेस दैट -5 इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब -5 को तो नहीं कर सकते, बट 5 को हम बाजू में ले लेंगे और साइड में यहाँ पे लेंगे -1। अब इस -1 को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। How we can write that -1 in terms of complex form, that is equals to 5 as it is. That -1 can be written as cos pi plus I sin pi. Yes, we can write in this way because cos pi is nothing but a -1. अब इसके पहले बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में देखे थे कि अगर यहाँ पे -1 है तो -1 को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू ऐसी लेते हैं हम कि वहाँ पे -1 आ जाए। हमें पता है कि cos pi is nothing but a -1 and sin pi is a 0. So finally what we get? Yes, we get a -1 और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे अगर कैपिटल L दिख रहा है तो ये जनरलाइज वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको। सो यहाँ पे हम लिखेंगे cos ऑफ 2n pi प्लस pi प्लस I इंटू साइन ऑफ 2n pi प्लस pi, ऐसे फॉर्म में आ जाएगा आपका। तो इन दिस वे वी राइट दैट टर्म। तो ये तो हो गई आपकी जनरलाइज वैल्यू। सो दैट 5 इंटू ई रेस टू द पावर आर 2n pi प्लस pi, और यहाँ पे अब लेंगे हम log, सो दैट log ऑफ कैपिटल log,
सो कैपिटल लॉग, यहाँ पे अगर डायरेक्ट आप फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं कि अगर प्रिंसिपल वैल्यू है तो लॉग आर प्लस आई इंटू 2n पाई प्लस थीटा। आर इज अ मैग्नीट्यूड और थीटा इज अ एम्पलीट्यूड। अब अगर इस पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे ये हो गया आपका आर और ये हो गया आपका थीटा, मतलब पाई हो गया आपका थीटा, सॉरी यहाँ पे ये थीटा हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। पर जनरलाइज वैल्यू लिखनी है तो थीटा के साथ हमें क्या लेना है, यस थीटा के साथ हमें लेना है 2n पाई। सो यहाँ पे हम log ऑफ -5 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम log ऑफ 5 इंटू ई रेज़ टू द पावर आई 2n पाई प्लस पाई। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, यस यहाँ पे लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगेंगी आपकी। इट इज इन द फॉर्म ऑफ log ऑफ a इंटू बी, सो दैट कैन बी रिटन एज यहाँ पे स्मॉल l, दैट इज log ऑफ 5 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये i इंटू 2n पाई प्लस पाई आ जाएगा मल्टीपल में और यहाँ पे हो जाएगा आपका log ऑफ e। log e इज नथिंग बट अ 1, सो सिंपली यू गेट अ log 5 प्लस r into 2n pi plus pi. So in this way you get the general value of that log. So in this way we write the log of -5. अब ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसको और भी इजी तरीके से हम करेंगे। दैट इज सेकंड वी हैव टू फाइंड log ऑफ व्हाट वी हैव टू फाइंड log ऑफ 1 प्लस आई। तो हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे 1 प्लस आई जिसका हमें log निकालना है और यहाँ पे हमें सिंपली प्रिंसिपल वैल्यू, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको लिखेंगे पहले आर और थीटा की फॉर्म में। आर और थीटा की फॉर्म में इसलिए लिखना जरूरी है बिकॉज जब भी हम लॉग निकालेंगे तो वी रिक्वायर दैट आर एंड थीटा। सो आर इंटू हाउ वी राइट इज अ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, सो हाउ इज योर आर, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 और वी कैन राइट 2 रेज़ टू द पावर 1/2। उसके बाद थीटा tan inverse of imaginary part by real part, that is 1/1, that is tan inverse of 1 is a pi/4। तो थीटा हो गया आपका pi/4 और r हो गया आपका 2 रेज़ टू 1/2। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एंड देयरफॉर log ऑफ z की जगह हमारे पास है 1 प्लस आई। सो ये जो दोनों फॉर्मूले आप लोगों को मैंने ये रट लेना या ध्यान में रखना। सो एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जब आपकी कौन सी वैल्यू रहेंगी, जनरल L फॉर G एंड स्मॉल l फॉर P, कैपिटल L फॉर G दैट इज जनरल वैल्यू, स्मॉल l फॉर P, और जब कैपिटल L रहेगा तो थीटा के साथ 2n पाई और यहाँ पे सिंपली थीटा। ये तो टर्म दोनों इसमें क्या रहने वाले हैं, कॉमन रहने वाले हैं। सो रिमेंबर दैट। सो दैट इज इक्वल्स टू हमें क्या लिखना है, log r, log ऑफ r इज दैट इज 2 रेज़ टू द पावर 1/2 प्लस I into theta, theta is nothing but a pi/4. So we write here that is a 1/2 into log 2 plus I into pi/4 and that is the value of log of 1 plus I। है ना, बहुत ही easy problem, yes it's a very easy problem। ऐसे problem आ सकते हैं MCQ type questions में, so remember that। Now we see that problem we have to prove that should be equals to this। Now it is in the form of log of a by b। हमें पता है कि log of a by b can be written as log a minus log b। तो सबसे पहले इस टर्म को हम लिखेंगे that is log of cos of x minus iy upon cos of x plus iy। okay, so that is equals to log of cos of x minus iy plus log of cos of x प्लस आई वाई, ऐसे फॉर्म में हम लिखेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, वी एक्सपांड दैट cos ऑफ a माइनस बी। ये इस फॉर्म में है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ cos ऑफ a माइनस बी और ये है इट इज इन द फॉर्म ऑफ cos ऑफ a प्लस बी। तो दोनों का एक्सपेंशन हमें पता है दैट इज cos a cos b प्लस sin a sin b, cos ऑफ a प्लस b दैट इज cos a cos b माइनस sin a sin b। तो ये एक्सपेंशन यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा, इट इज दैट फॉर्म। सो दैट इज इक्वल्स टू log ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे cos ऑफ x cos i y प्लस साइन ऑफ x साइन ऑफ i y। ये हो गया पहले टर्म का एक्सपेंशन प्लस सेकंड log ऑफ cos ऑफ x
cos आई वाई माइनस साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ आई वाई। अब दोनों बातें यहाँ पे ध्यान रखना है कि cos आई वाई को और sin आई वाई को जो यहाँ पे i के फॉर्म में टर्म्स है वी कन्वर्ट इट इनटू, वी कैन राइट cos आई वाई कैन बी रिटन एज cos एच वाई हाइपरबोलिक में, और cos ऑफ साइन जो होंगी आपकी साइन ऑफ आई वाई, दैट साइन ऑफ आई वाई कैन बी रिटन एज आई साइन एच वाई। अब इस y के जगह अगर x भी होगा तो रिजल्ट वो वैसे फॉर्म में आ जाएगा x के फॉर्म में, बट यहाँ पे y के फॉर्म में है तो y के फॉर्म में हम रिजल्ट लिखेंगे। अब आगे लिख लेंगे हम, तो आगे क्या होगा आपका log ऑफ, यहाँ पे टर्म होंगी आपकी cos x cos एच वाई प्लस यहाँ पे साइन आई वाई है तो साइन आई साइन एच वाई, तो आई हम आगे ले लेते आई साइन एक्स साइन एच वाई, उसके बाद प्लस लॉग ऑफ, अब लॉग ऑफ क्या होगा हमारे पास cos x cos एच वाई माइनस ऑफ आई इंटू साइन एक्स साइन ऑफ एच वाई। इस तरह से हमने क्या कर दिया इस दोनों टर्म को हमने एक्सपांड कर दिया कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई, ये रियल पार्ट हो गया आपका और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिदमिक फॉर्म निकालते हैं, दैट इज जैसे अब यहाँ पे हमें 2i tan इनवर्स ऑफ ये बताया है और log स्मॉल लिया है, तो ऑब्वियसली ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होंगी, तो log z इज इक्वल टू log r प्लस आई थीटा रहता है। नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई, और ये भी x प्लस x माइनस आई वाई के फॉर्म में टर्म है। तो सिंपली यहाँ पे वैल्यू क्या होंगी आपकी, यहाँ पे r होगा आपका r इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहता है, ये x की वैल्यू है ये y की वैल्यू है, दोनों के लिए ये वैल्यू सेम है, और थीटा की वैल्यू रहती है दैट इज tan इनवर्स ऑफ दैट y बाय x। तो ऐसे फॉर्म में हमें लेके वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ, एक थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे ध्यान में रखना, इट इज इन द फॉर्म ऑफ log ऑफ a बाय b, तो log a माइनस यहाँ पे साइन रहेंगी आपकी log a माइनस log b, अगेन वी टेक द एक्सपेंशन ऑफ दैट log ऑफ cos ऑफ x माइनस y, दैट इज log ऑफ दैट टर्म माइनस log ऑफ दैट सेकंड टर्म, हियर इज आल्सो वी पुट log ऑफ दैट, वी कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ हाइपरबोलिक एंड देयर इज अगेन अ माइनस साइन। अब ये है आपका ऊपर की जो टर्म है इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई और नीचे की टर्म x माइनस आई वाई। सो फॉर इस टर्म के लिए फॉर cos x cos एच वाई प्लस आई इंटू साइन एक्स साइन एच वाई, हम r और थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। r इज इक्वल टू क्या रहता है हमारा अंडर रूट ऑफ क्या होगा, या फिर अंडर रूट की जगह हम 1/2 भी लिख सकते हैं, दैट इज cos x cos एच वाई होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स साइन एच वाई होल स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी किसकी वैल्यू, हैविंग द पावर रेस्ट टू द पावर 1/2, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 1/2, दैट इज वैल्यू ऑफ r हियर, so that is a log of r हमें लेना होगा यहाँ पे, and that theta is equals to, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ, आपको अगर ध्यान में नहीं हुआ दैट इज अंडर रूट ऑफ दिस टर्म, एंड थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b बाय a और y बाय x, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, so that is a sin x sin hy अपॉन cos x cos hy। अब सिमिलरली ऐसे ही इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी हम r और थीटा निकालेंगे, तो r में तो कोई चेंज नहीं होगा, सिंपली थीटा में क्या होगा, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y, तो y की वैल्यू यहाँ पे माइनस ऑफ sin x sin hy होंगी, तो ये जो माइनस है वो आगे आ जाएंगे। सो हाउ वी कैन राइट फॉर cos ऑफ x cos hy प्लस i इंटू sin x sin hy, यहाँ पे साइन पुल से आपकी माइनस है, ओके सेकंड टर्म में माइनस है और फर्स्ट टर्म में थी प्लस, तो r की वैल्यू सेम रहेंगी, r इज इक्वल्स टू रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, तो रियल पार्ट्स ये है, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे माइनस भी आया तो हम स्क्वायर लेते हैं, तो स्क्वायर लेने की वजह से ये प्लस ही हो जाएगा, सो अंडर रूट ऑफ वी कैन राइट cos x cos hy
होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स साइन एच वाई होल स्क्वायर, ऐसे फॉर्म में है। ओके, और थीटा क्या मिलेगा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। तो y है हमारे पास माइनस साइन एक्स साइन एच वाई अपॉन कॉस ऑफ एक्स कॉस एच वाई। अब ये जो माइनस है वो हम आगे ले लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, जैसे हम साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा दैट इज माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा के फॉर्म में आता है वो रिजल्ट। तो वो नीचे लिखेंगे हम, तो यहाँ पे वो लिखना पॉसिबल नहीं है, सो हियर वी एडजस्ट दैट टर्म दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन एक्स साइन एच वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस एच वाई। सो इस तरह से हमें क्या मिल गया, इस तरह से दोनों टर्म के, इस टर्म के और इस टर्म के दोनों टर्म्स के हमें आर एंड थीटा मिल गए हैं। सो वी पुट दैट वैल्यूज हियर to get the logarithm of that term. Okay, so we put on that side. So finally what we do here, we put that log of z is equals to log r plus I sin theta. तो r की वैल्यू ये पुट करेंगे, दैट इज फर्स्ट टर्म के लिए, देखो दैट इज आवर फर्स्ट टर्म, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है। तो यहाँ पे क्या होगा, log r प्लस आई थीटा, तो इसकी वैल्यू log r, तो r की वैल्यू ये है हमारे पास, दैट इज अंडर रूट ऑफ दिस टर्म, सो वी पुट इन प्लस थीटा की वैल्यू प्लस i इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ दिस टू, वी पुट हियर, देन देयर इज अ माइनस साइन, माइनस सेकंड टर्म का log ऑफ r, तो इसका भी सेम ही रहेगा r माइनस, यहाँ पे माइनस साइन होंगी बिकॉज हियर थीटा इज अ, यहाँ पे क्या है माइनस है, माइनस y बाय एक्स, तो ये माइनस बाहर आ गई, सो माइनस आई इंटू tan इनवर्स ऑफ दिस। अब उसके बाद अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे प्लस है ये वैल्यू, और यहाँ पे ये माइनस हो जाएंगी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, तो दैट्स व्हाई दैट टर्म एंड दैट टर्म गेट अ कैंसल। तो आगे ऐड कौन से होंगी, दैट इज आई इंटू tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स साइन एच वाई अपॉन कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ एच वाई। तो यहाँ पे ये माइनस साइन होने की वजह से ये माइनस माइनस प्लस, so that term and that term get added and that is a 2 times, so that is 2i tan inverse of that y by x, that is sin x sin h y upon cos x cos h y. So अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, फाइंड log I to the power I. now it is in the form of, ये कौन सी फॉर्म में है, log A to the power B, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, सॉरी ये ऐसे फॉर्म में नहीं है, दैट इज log a to the base b, ऐसे फॉर्म में है, लिखते हो थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़, दैट इज log I to the base I, log a to the base b, तो इसको लिखते हैं हम log a अपॉन log of b, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे भी इसको कैसे लिखेंगे, दैट इम्प्लाइज log I to the base I, दैट कैन बी रिटन एज, यहाँ पे देखो वैल्यू क्या है, कैपिटल यल है, तो यहाँ पे भी हमें कैपिटल यल ही लेना पड़ेगा, दिस log ऑफ दोनों का कैपिटल, दैट मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, दैट इज log ऑफ, डिनोमिनेटर में भी आई आ गया, log I अपॉन log I। तो यहाँ पे नॉट अ फाइंड, वी हैव टू प्रूव दैट, और प्रूव क्या करना है, यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि log I टू द बेस I इक्वल्स टू 4m प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 1। अब यहाँ पे m और यहाँ पे n दिख रहा है, दैट मीन्स ये जनरलाइज वैल्यू अपन जब लेते हैं तो आप वहाँ पे क्या लेते हैं, 2n पाई आर, 2m पाई आर, 2k पाई, आप कोई भी मल्टीपल ले सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी वो m और n दोनों डिफरेंट ले लिए हैं, क्योंकि वी हैव टू फाइंड टू डिफरेंट वैल्यूज, एंड दैट्स व्हाई वी राइट हियर। अब लॉगरिथम ऑफ i निकालना है तो रिजल्ट हम ये यूज करेंगे जनरल वैल्यू का। अब यहाँ पे i है, तो i अगर आपका नंबर हो गया, तो हाउ यू कैन एक्सप्रेस दैट i इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज 0 प्लस i, और इसको भी आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, या फिर यहाँ पे i एज इट इज रख देते हैं, नेक्स्ट टर्म में हम लिखेंगे दैट इज log ऑफ 0 प्लस i, और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में लिखेंगे log ऑफ 0 प्लस i। तो आपका x हो गया 0 और y हो गया i, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, r और थीटा के फॉर्म में, दैट इज log ऑफ r, log ऑफ r इज नथिंग बट दैट इज अंडर रूट ऑफ 0 प्लस 1, दैट इज योर r, प्लस i इंटू, यहाँ पे हमने यम लिया है तो दैट इज 2m पाई प्लस
theta is nothing but a tan inverse of y by x. Y is a 1 by 0. डिनोमिनेटर में सिंपली ऐसे ही टर्म आएंगे आपकी, दैट इज a log of r. अब डिनोमिनेटर का जो i है वो एक्स में सेकेंड 0 प्लस आए, तो रियल पार्ट है यहाँ पे 0, इमेजिनरी पार्ट है 1, दैट इज अंडर रूट ऑफ 0 प्लस 1, देन प्लस आई इंटू यहाँ पे हम 2n पाई लेंगे जनरलाइज फॉर्म, एंड प्लस थीटा दैट इज tan इनवर्स ऑफ अगेन यहाँ पे क्या होगा 1 by 0. तो इस तरह से वी राइट दैट बोथ टर्म हियर. अब आगे हम देखेंगे कि हाउ टू सिंप्लीफाई दैट प्रॉब्लम. दैट इज tan इनवर्स ऑफ 1 by 0, दैट इज tan इनवर्स ऑफ, ये होगा इन्फिनिटी के फॉर्म में, और log 1 ये हो जाएगा आपका log 1 दैट इज अ 0. सो सिंपली यहाँ पे क्या रहने वाला है, दैट इज इक्वल्स टू आई भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. सो दैट गिव्स log ऑफ i टू द बेस i, दैट इज इक्वल्स टू log ऑफ 1 की वैल्यू हमें पता है कि log 1 इज इक्वल्स टू क्या रहता है 0. सो log ऑफ रूट 1 दैट इज log 1 दैट इज अगेन 0. यहाँ पे भी 0 आ जाएगा. सो सिंपली यहाँ पे रहेगा दैट टर्म अपॉन दिस आई गेट अ कैंसल. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2m पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ, अब tan इनवर्स ऑफ 1 by 0, 1 by 0 इट इज इंफिनिटी, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी इज नथिंग बट पाई बाय 4. ये tan इनवर्स ऑफ 1 by 0 इज इंफिनिटी. सो tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी होंगी यहाँ पे, या फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि व्हाट इज दैट tan इनवर्स ऑफ 1 by 0 is infinity, tan inverse of infinity that is nothing but a pi by 2. So here we write that is equals to 2m pi plus pi by 2 upon 2n pi plus pi by 2. So that is a log of I to the base I, that is equals to cross multiplication 4m pi plus pi, तो pi निकल जाएगा आपका कॉमन वहां से, या फिर आप पाई बाय 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं वहां से. सो वी राइट टेक अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दैट इज 4m पाई प्लस पाई अपॉन 2. हियर इज आल्सो 4n पाई प्लस पाई बाय 2. ओके, या फिर डायरेक्टली और भी इजी आपको काम करना है. सिंपली क्या करना, पाई बाय 2 ले लो कॉमन. यहाँ से अगर पाई बाय 2 ले लिया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लेने के वजह से ये हो जाएगा आपका 4m. नीचे से अगर ले लेंगे पाई बाय 2 1 प्लस यहाँ पे 2 लेने के वजह से ये 4n पाई, सॉरी 4n ओनली बिकॉज वी हैव टेकन अ पाई. फाइनली व्हेन यू अप्लाई पाई बाय 2 प्लस 4 बाय 2 दैट इज 2m इंटू पाई. यहाँ पे पाई बाय 2 प्लस 4n pi by 2 that is a 2n pi. So that pi by 2 get a cancel and you get the final result. So in this way we get the answer of that term also. So finally that pi by 2 get a cancel. यहाँ पे log I to the base I का रिजल्ट ये आ जाएगा आपका. We have to put the value of the tan inverse of, इसकी वैल्यू tan inverse of infinity that is a pi by 2. So we put here pi by 2, then pi by 2 take a common. So here is a 1 plus, यहाँ से pi by 2 लेने की वजह से 4m, यहाँ से pi by 2 लेंगे डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे रहेगा 4m. So pi by 2 get a cancel and finally you get the result. So in this way we get the answer of that problem. Now student, I have written here one problem, that is log of a plus ib upon a minus ib equals to 2a tan inverse होगा यहाँ पे tan inverse of b by a, that you have to prove. Tan inverse of b by a, I will check it. Yes, there is a tan inverse of b by a, you have to show, that is log of a plus ib upon a minus ib equals to 2a tan inverse of b by a, that you have to, ये प्रॉब्लम आपको करना है एज अ होमवर्क, आपको सॉल्व करना है. जैसे ही प्रीवियस प्रॉब्लम हमने देखे थे, दैट इज लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस आई वाई अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस आई वाई, बस उसी तरह से ये प्रॉब्लम भी करना है. सिंपली कॉस एक्स माइनस आई वाई की जगह ए प्लस आई बी है और कॉस ऑफ एक्स प्लस आई वाई की जगह ए माइनस आई बी है. सो यू हैव टू एक्सपांड दैट एंड यू हैव टू गेट द आंसर. एंड नेक्स्ट वी कंसिडर द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज कंसिडरिंग ओनली अ प्रिंसिपल वैल्यू. You have to prove that real part of 1 plus I root 3 raised to 1 plus I root 3 is
इन दिस फॉर्म। मतलब ये है उसका रियल पार्ट, ये हमें क्या करना है वहां पे प्रूव करना है। सो हाउ वी प्रूव दिस? सबसे पहले इसको लिख लेते हैं हम। व्हाट इज द नंबर हियर गिवन? 1 प्लस आई रूट थ्री। ये पेन शायद that is 1 plus I root 3 raised to the power 1 plus I root 3। ओके, ऐसे फॉर्म में है। हमें अब इसका लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि वी हैव टू टेक अ प्रिंसिपल वैल्यू। तो लॉग लेने के लिए यहाँ पे अनदर साइड में कोई टर्म नहीं है। हाउ वी टेक अ लॉग? वी हैव टू टेक अ लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करेंगे, दैट इज ई रेस टू लॉग ऑफ 1 प्लस आई रूट थ्री रेस टू द पावर 1 प्लस आई रूट थ्री। अगर ऐसे टर्म लिखेंगे तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ई रेस टू लॉग ऑफ दैट टर्म मीन्स दिस टर्म एज इट इज, सो वी टेक ई रेस टू लॉग ऑफ दैट। सो हाउ वी राइट? दैट इज इक्वल्स टू ई रेस टू, अब ये लॉग ए टू द पावर बी है तो बी आ जाएगा मल्टीपल में, सो दैट इज 1 प्लस आई रूट थ्री। यहाँ पे होगा आपका लॉग ऑफ 1 प्लस आई रूट थ्री। ओके, तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। नाउ वी सेपरेट द टर्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? दैट इज ई, यहाँ पे 1 ई रेस टू द 1 प्लस आई रूट थ्री, सो दैट ई इंटू ई रेस टू द पावर आई रूट थ्री। हम इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं एंड दैट इज अ लॉग ऑफ 1 प्लस आई रूट थ्री। तो इसको लगाएंगे हम लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स। सो ये टर्म हम एज इट इज रखेंगे और इसका निकालेंगे हम लॉगरिथम, दैट लॉग ऑफ x प्लस आई वाई। इट इज इन द फॉर्म ऑफ लॉग ऑफ x प्लस आई वाई। तो दैट वैल्यू क्या रहती है उसकी? लॉग ऑफ r प्लस r इंटू थीटा, दैट इज लॉग ऑफ r प्लस आई थीटा। वी हैव टू फाइंड द r एंड थीटा। तो यहाँ पे ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर z इज इक्वल्स टू, या फॉर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई रूट थ्री। थीटा क्या होगा आपका, सॉरी r क्या होगा? r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस रूट थ्री स्क्वायर। तो ये हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 1 प्लस थ्री, दैट इज इक्वल्स टू रूट फोर। अब रूट फोर मीन्स r इज इक्वल्स टू आ गया 2। ओके, एंड थीटा इज इक्वल्स टू, इफ यू कैन सी दैट, इफ इज नॉट पॉसिबल, यस यू कैन सी ऑन दिस साइड। सो थीटा इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? tan इनवर्स ऑफ y by x, y is a root 3 by x is a 1. So tan inverse of root 3, that is a pi by 3. So in this way we get a theta and r is equals to 2. So finally we can put the values of r and theta here. R is the magnitude of that complex number, theta is the amplitude of that complex number. So we put both the values and therefore 1 plus I root 3 raised to the power 1 plus I root 3, that is equals to, क्या हो जाएगा ये? ई रेस टू द पावर, पहली टर्म एज इट इज रहेंगे हमारी 1 प्लस आई रूट थ्री, और यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग ऑफ आर इज 2 प्लस आई इंटू थीटा इज टैन इनवर्स ऑफ रूट थ्री, दैट इज अ पाई बाय थ्री। सो लॉग 2 प्लस आई पाई बाय थ्री। सो ये वैल्यू कहाँ पे आ गई? ये आ गई इसके पावर में, सॉरी इट इज नॉट इन, यहाँ पे आएंगी ये, बिकॉज ये यहाँ पे इस टर्म के साथ मल्टीपल में है। सो दैट इज लॉग ऑफ 2 प्लस आई इंटू थीटा इज अ tan इनवर्स ऑफ रूट थ्री, दैट इज अ पाई बाय थ्री। सो इन दिस वे वी राइट। अब क्या होगा? दैट टर्म एंड दैट टर्म वी हैव टू मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे इस टर्म का, तो 1 इंटू दैट इज अ लॉग ऑफ 2, 1 इंटू दैट प्लस आई पाई बाय थ्री प्लस सेकेंड आई इंटू दिस आई root 3 log 2, then I into I square is a minus, so minus root 3 into pi by 3. So in this way we get that. अब इसका करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट कलेक्ट। तो रियल पार्ट मतलब द टर्म विदाउट आई, तो रियल पार्ट क्या होगा हमारा? log ऑफ 2 माइनस ये रूट 3 बाय 3 है तो ये हो जाएगा पाई बाय 3 प्लस यहाँ पे I into pi by 3 plus root 3 into log 2. You can write in this form. So now we have to expand that term. How we expand this? अब इसका देखेंगे हम expansion. That is e raised to the power log 2
माइनस पाई बाय 3 तो हमारी एज इट इज रहेंगी. इट इज इन द फॉर्म ऑफ log ऑफ e रेस टू द पावर a प्लस आई बी, दैट इज e रेस टू a प्लस आई बी, दैट इज e रेस टू a इंटू e रेस टू b. जैसे ये प्रॉपर्टी रहती है, दैट इज e रेस टू a प्लस b, दैट इज इक्वल्स टू, हाउ वी कैन राइट e रेस टू a प्लस b, दैट इज e रेस टू a इंटू e रेस टू b. सो वी हैव टू राइट हियर e रेस टू द पावर i इंटू पाई बाय 3 प्लस रूट 3 इंटू log 2. ओके, ऐसे फॉर्म में हम इस टर्म को स्प्लिट करेंगे. नाउ इट इज इन द फॉर्म e रेस टू, ये कौन सी फॉर्म में आ गया? इट इज इन द फॉर्म ऑफ e रेस टू i थीटा. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ e रेस टू i थीटा, और e रेस टू i थीटा का एक्सपेंशन दैट इज अ cos ऑफ थीटा प्लस i sin थीटा. सो वी पुट दैट फर्स्ट टर्म एज इट इज e रेस टू log 2 माइनस पाई बाय 3 एज इट इज रहेंगे, और इसका लेंगे हम एक्सपेंशन cos और sin के फॉर्म में. तो देखो एक्सपेंशन क्या होगा, मैं नीचे लिख लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे पूरा आएगा नहीं वो. सो दैट कैन बी रिटन एज cos ऑफ पाई बाय 3 प्लस रूट 3 इंटू log 2 प्लस i इंटू साइन ऑफ पाई बाय 3 प्लस रूट 3 इंटू log ऑफ 2. ओके, सो इन दिस वे वी गेट दैट. नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई. सो अब रियल पार्ट अगर लेंगे आप तो सिंपली द टर्म्स other than I, so that term into this cos it become a real, and this term into I into that sin of term it become a imaginary. तो हमें क्या चाहिए? रियल पार्ट. तो हमारा रियल पार्ट देखो क्या हो जाएगा. सो यू हैव टू फाइंड दैट रियल पार्ट. और यहाँ पे भी और एक बात ध्यान से देखना कि दैट हाउ यू कैन राइट दैट टर्म e रेस टू द पावर log 2 माइनस पाई बाय 3 कैन बी रिटन एज e रेस टू log 2 into e raised to minus pi by 3. Now e raised to log 2 is nothing but a 2 into e raised to minus pi by 3. So we have to separate that term here. So we separate this term and then we can simply एक करेक्शन क्या है यहाँ पे, e raised to the power log 2 और ये टर्म रियल पार्ट में आएंगी, ये आई की टर्म इमेजिनरी पर रूट 3 बाय 3 ये हो जाएगा आपका, दैट इज रूट 3 बाय 3 इक्वल्स टू 1 बाय रूट 3. तो यहाँ पे क्या होगा, e रेस टू log 2 माइनस दैट टर्म पाई बाय रूट 3. तो यहाँ पे हो जाएगा पाई बाय रूट 3. इट इज ऑल्सो पाई बाय रूट 3. यहाँ पे जब आप सेपरेट करेंगे e रेस टू log 2 माइनस पाई बाय रूट 3, सो दैट इज e रेस टू log 2 e रेस टू माइनस पाई बाय रूट 3. सो दैट इज here is also minus pi by root 3, here is also minus pi by root 3. ऐसे फॉर्म में टर्म आएंगे आपकी. तो अब ये तो होगा एक पार्ट, इनटू दिस टर्म बिकम आवर रियल पार्ट. सो रियल पार्ट क्या हो जाएगा आपका, व्हाट इज रियल पार्ट, दैट इज इक्वल्स टू e रेस टू, इस टर्म को हमने सिंप्लीफाई किया इस फॉर्म में, दैट इज 2 इंटू e रेस टू द पावर माइनस पाई बाय रूट 3 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 3 प्लस रूट 3 into log of 2. So that is, in this way we prove this result. यही हमें प्रूव करना था. So one by one how we take e raised to log of that term comes in a multiple of that log. उसके बाद that is a log of x plus i y. log of x plus i y का लॉगरिथम क्या रहेगा, log of r plus i theta, इसका लॉगरिथम. r की वैल्यू from this you take a value of r and theta we take a pi by 3. So we put here log r plus I theta. Then what we do, we take a multiplication of these two brackets. So 1 into log 2 plus I root 3, 1 into log 2 plus 1 into I pi by 3 plus I root 3 into log 2 plus I into I square. So minus root 3 by 3. So that become a, यहाँ पे root 3 by 3 ये वैल्यू आ जाएंगे, that is a pi by root 3. लगे तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख लेती हूँ, दैट इज पाई बाय रूट 3, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, रूट 3 पाई बाय 3, दैट इज अ पाई बाय रूट 3. सो दैट इज अ पाई बाय रूट 3. सो अब रियल पार्ट क्या होगा, दैट टर्म एंड दैट टर्म बिकम अ रियल पार्ट. सो आई हैव रिटन हियर, आई कॉमन निकालने के बाद जो टर्म बचेंगी दैट इज इमेजिनरी पार्ट. नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई, ये रियल पार्ट प्लस आई इंटू इमेजिनरी पार्ट. तो रियल पार्ट हमने एज इट इज रखा, e रेस टू आई इंटू दैट टर्म वी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ cos ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा. सो वी राइट दिस, दैट इज अ cos
थीटा के जगह ये है प्लस आई इंटू साइन ऑफ दैट सेम एंगल। उसके बाद इस टर्म को सिंप्लीफाई किया, इसको सेपरेट किया, ई रेस टू ए माइनस बी दैट इज ई रेस टू ए इंटू ई रेस टू माइनस बी। सो ई रेस टू ए दैट इज ई रेस टू लॉग 2 दैट इज अ 2, ई रेस टू माइनस पाई बाय रूट 3 एज इट इज। और इस टर्म से फिर हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। सो दैट टर्म इंटू दिस टर्म गिव्स ओनली द रियल पार्ट एंड दिस टर्म इंटू आई ऑफ दैट टर्म गिव्स द इमेजिनरी पार्ट। बट हमें सिंपली रियल पार्ट निकालना था, तो वी राइट ओनली द वैल्यू ऑफ रियल पार्ट। सो होप यू अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम। और यहाँ पे हम करते इसको स्टॉप और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए यूनिट्स के साथ। ये था आपका लास्ट टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर का। कुछ और भी प्रॉब्लम्स आप लोगों को मैं असाइनमेंट में दूंगी फॉर टू सॉल्व दिस logarithm of complex number and other topics of this complex number. So we will stop here now. Thank you students.